हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। मैंने जिस तरह कहा था आप लोग को क्लास 10 की जो ये साइंस है इसका लाइट एंड रिफ्लेक्शन एंड रिएक्शन के अंदर जो भी मैथ्स आएगा आपका 5 मार्क का आएगा वो मैं सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। अपना लोगों मैं आगते जनाइছিলোঁ যে মই এটো সলভ কৰি দিম, সেইকাৰণে মই আজি সেই কেইটা কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ ইম্পৰ্টেণ্টবিলাক যিবিলাক প্ৰিভিয়াছ পেপাৰত আহিছে বহুত কেইটা কুৱেশ্যন সেইটো মই সমাধান কৰি আপোনালোকৰ বুজাই দি আছোঁ। সো वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। এতিয়া আপোনালোকে যদি চাই आप लोग अगर देखते हैं मैं দুটা ল্যাঙ্গুৱেজ ইউজ কৰিম হিন্দী এণ্ড আসামিজ, কাৰণ ইয়াত মানে বহুত কেইটা ষ্টুডেণ্ট ইংলিছ মিডিয়ামৰ আছে, সিহঁতে অসমীয়া ইমান বুজিব নোৱাৰে। सो आई होप कि आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं देखिए मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। बाय द वे यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे ये सब एग्जाम्पल वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ये भी कर लेना ज़रूरी था। तो मैं एक काम करता हूँ कि सबसे पहले आपको पेपर दिखा के वो सॉल्व करा देता हूँ कि इसमें इम्पोर्टेंट मैंने कहा भी था कि यहाँ पे 11, 11 नंबर, 12 नंबर, 13, 14 ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कई बार एग्जाम होता ही से। आप लोग अगर विश्वास नहीं होगा तो ये अकेला एक ऐसा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन टू साक 14 नंबर 2 এইটো তিনিবাৰ रिपीट हल क्लास आपको पेपर खिनी जो आसे चाई लब 2016 में भी आया, 18 में भी आया और 21 का स्पेशल एग्जाम में भी आया। सो इसी को हम पहले करेंगे। देखिए एक वीडियो में सभी मैथ्स को समझा देना संभव है नहीं, तो मैं 2-3 वीडियो बनाऊंगा इसके लिए। तो अभी मैं ये सॉल्यूशन करने वाला हूँ क्योंकि बहुत सा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग का जो कंपार्टमेंटल एग्जाम है उसमें रिपीट ही क्वेश्चन दिया जाएगा, जो क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है। जी क्वेश्चन प्रथमते आহি গৈছে एग्जामत সেইকেইটা क्वेश्चনৰ ভিতৰতে এক্সামিনাৰে क्वेश्चन बनाब, সেইকাৰণে এটো এটা বহুত महत्वपूर्ण क्वेश्चन বুলি ক'ব পাৰো, কাৰণ এই এটা क्वेश्चन 40 নম্বৰ তিনিবাৰ এক্সামত আহি গৈছে। হাফেলি আৰু প্ৰি ফাইনেল মই নকওঁ আৰু এইটো ফাইনেলত কৈ আছো। 16ত আহিছে, 18ত আহিছে, আকৌ 21ৰ স্পেশালৰ পেপাৰত আহিছে। আপোনালোকে চাই ল'ব এই क्वेश्चनটো মই দেখুৱাই দি আছো। এইটো চাব, এইটো সায়েন্সৰ স্পেশাল পেপাৰখিনি নহয় জানো, স্পেশাল পেপাৰ জেনাৰেল সায়েন্স স্পেশাল এক্সামিনেশ্যনৰ পেপাৰটো 2021ৰ। মোৰ লগত সেই আপোনালোকৰ যি এক্সামত ফেল কৰিছে সিহঁতৰ পেপাৰ মোৰ লগত আছে, মই এতিয়া পালোঁ। এইটো চাব 2021ৰ জেনাৰেল সায়েন্সৰ সেই পেপাৰখিনিৰ ভিতৰত আপোনালোকে ফেল কৰিছে, যিহঁতৰ মানে বেয়া হৈ গৈছে পেপাৰখিনি বেয়া হ'ল। এতিয়া আপোনালোকে জানে যে এক্সামিনাৰে এইটো অলপ চাব, এইটো 21ৰ জেনাৰেল সায়েন্সৰ পেপাৰখিনি ইয়াত এক্সামিনাৰে মেথছটো দি আছে, ফ'কাছ লেন্থৰ ভিতৰত যিবিলাক মেথছ দি আছে এইটো 5 মাৰ্কৰ আহে। দুটা দি দিয়ে, এটা আপোনালোকৰ কৰিব লাগে, এইটো 5 মাৰ্ক, কিন্তু বহুত महत्वपूर्ण মাৰ্ক সেইটো বুলি ক'ব পাৰোঁ। সেইকাৰণে ইয়াতে স্পেশাল এক্সামৰ যি পেপাৰখিনি আছে সেই তাতেও তেনেকৈ কৰিছে এক্সামিনাৰে, ঠিক তেনেকুৱা প্ৰচেছে ইউজ কৰিছে। এই চেপ্টাৰৰ ভিতৰত 8 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন আহে, এটা মেথছ দি দিয়ে 5 মাৰ্কৰ, 5 মাৰ্কৰ এটা মেথছ দিয়ে, এইটো চাব, এইটোও 5 মাৰ্ক, এইটো দিছিল, এইটো বুকৰ কুৱেশ্যন 40 নম্বৰ, এইটো 21ত স্পেশাল এক্সামত আহিছে। এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত অলপ চাব, ইয়াত অলপ কি ক'লে এক্সামিনাৰে অলপ চাব, ইয়াত ক'লে অৰ বা নাইবা বা অথবা এটা, আৰু এইটো যদি প্ৰথম কুৱেশ্যনটো কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে দ্বিতীয় কুৱেশ্যনটো এক্সামিনাৰে ক'লে এইটো কৰিব পাৰিব আপোনালোকে। যদি মানে দুটাৰ ভিতৰত এটাহে কৰিব লাগে, এইটোও সেম, এইটোও 5 মাৰ্কৰ, এইটো এক্সাৰসাইজৰ পৰা দি দিছে এক্সামিনাৰে। এক্সাৰসাইজ 10.2 আপোনালোকৰ এই বুকৰ 10.2 এক্সাম্পলখিনি উঠাই দি দিছে। সো মই দুটা সমাধান কৰিম। এতিয়া চাব আপোনালোকে প্ৰথম কুৱেশ্যনখিনি যে আহিছে এইটো বহুত महत्वपूर्ण, কাৰণ ৰিপিট হ'ব কুৱেশ্যনে, মই কৈ আছোঁ। ইয়াৰ আগতে মই এই চেপ্টাৰ 6, চেপ্টাৰ 1 एंड চেপ্টাৰ 10ৰ স্পেশাল ভিডিও 3টা बनालूँ। এইটো যদি শোৱা नहीं এইটো চাই ল'ব। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो इसको जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखिए क्या दिया है। एन ऑब्जेक्ट द 5 सेंटीमीटर लेंथ इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ ए कनभेक्स मिरर। এইখিনি এইটো এটা মন কৰিব লগা কথা। মিৰৰখিনি কি দিছে এইটো অলপ বহুত ধুনীয়াকৈ চাব লাগে, কাৰণ মিৰৰৰ ওপৰত বহুত কেইটা মানবিলাক আছে, এইটো মাইনাছ প্লাছ হ'ব, আৰু ফৰ্মুলাটো এইটো অলপ চাব লাগিব। mirror of the radius curvature of 30 cm, find the position of the image, its nature and size। नेचर साइज उलाबोले होले हमको जब नेचर साइज निकालना पड़ता है तो हमें मैग्नीफिकेशन का मान चाहिए, मतलब m निकालना पड़ता है। m का फॉर्मूला होता है h'/h इक्वल टू -b/u, वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हम उसी के बेस पे इस मैथ्स को सॉल्व करेंगे। यही क्वेश्चन एटू चाब, ये क्वेश्चन 30 सेंटीमीटर बेस
উত্তল দৰ্পণত উত্তল দৰ্পণ এটো কিন্তু মন কৰিব লগা কথা উত্তল দৰ্পণ আৰু অৱতল দৰ্পণখিনি কাৰণ ইয়াৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব আপোনালোকৰ ভ্যালু বিলাক কেনেকা কি মাইনাস হ'ব কি প্লাস হ'ব এটো মই দেখুৱাই দি আছো সন্মুখত 20 সেন্টিমিটাৰ দূৰত্ব 5 সেন্টিমিটাৰ দৈৰ্ঘ্য বস্তু এটা ৰখাল প্ৰতিমিত অৱস্থান ইয়াৰ প্ৰকৃতি আৰু আকাৰ নিৰ্ণয় কৰিব লাগে याद रखिएगा यही क्वेश्चन जो है ये तो सेम क्वेश्चन या तो दिसे सेम 30 सेंटीमीटर भाज बेसाद उत्तल दर्पण सेम क्वेश्चन एको चेंज নাই এটো মই বনাই আছো বুকৰ क्वेश्चन আপোনালোকে আগত যদি বনাইছে এটো নিজেকে আৰু এবাৰ দুবাৰ সমাধান কৰি লোৱা কাৰণ বহুত महत्वपूर्ण এই क्वेश्चनখিনি মই আগতে কলো তিনিবাৰ এক্সামত আইছে আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে মোৰ লগত বহুত পেপাৰ মানে পুৰণি পেপাৰ বিলাক মই আছে এটো অলপ চাব এটো কিন্তু 14 ৰ পেপাৰ এটো জেনাৰেল সায়েন্সৰ আকৌ যদি এই পেপাৰখিনি চাব এটো আপোনালোকৰ 17 ৰ পেপাৰ বহুত কেইটা পেপাৰ আছে ইয়াতো মানে তেনেকা মেথছ বিলাক দি আছে এটোও চাব ইয়াত কি কলে ইয়াতো এনেকা মেথছ দি আছে 15 সেন্টিমিটাৰ ফোকাস দৈৰ্ঘ্যৰ পৰা লেন্সৰ 10 সেন্টিমিটাৰ দূৰত্ব লেখা হৈছে প্ৰতিমিত অৱস্থান আৰু বিভেদন নিৰ্ণয় কৰিব ইয়াতো সেম এটাই কোশ্চেন আগত কি মানে এটো বহুত আগত পেপাৰ এই কাৰণে ইয়াত 3 মাৰ্ক দিছে কিন্তু এতিয়া পেপাৰৰ ভিতৰত 5 মাৰ্কৰ আহি আছে মই এটা সমাধান কৰিম কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম এটো চাব আৰু ইয়াত মই সমাধান কৰি দেখুৱাই দি আছো এটি আপোনালোকৰ কেটা লিখিব লাগিব এটো কি লিখিবা মানে ইয়াত কি দিছে এটো লিখিব লাগে ইয়াত এক্সামিনাৰে ইয়াত কি দিছে আচ্ছা মই বুকখিনি নলও আৰু পেপাৰখিনি লও তেনে হলে মোৰ আৰু ধুনিয়া হ'ব মানে বুকটো অলপ ডাঙৰ হৈ যায় হেতুৱে লৈ আছো একে কোশ্চেন এতিয়া এটো চাব এটো কি কলে 30 সেন্টিমিটাৰ ভাজ বেসাদ ইয়াত ৰেডিয়াস দি আছে এটো কিন্তু ৰেডিয়াস 20 সেন্টিমিটাৰ এটো হল বস্তুৰ দূৰত্ব 30 सेंटीमीटर সম্মুখত বস্তুৰ দূৰত্ব এটো ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इंग्लिश में भी मैं बोल रहा हूँ 30 सेंटीमीटर ये आप बेसाद मतलब ये 30 सेंटीमीटर यहाँ पे देखिए कर्वेचर 30 सेंटीमीटर रेडियस फाइंड आउट करना है इसके बाद 20 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और 5 सेंटीमीटर उसका हाइट दिया हुआ है तो हमें यहाँ पे यू भी दिया है हमें भी निकालना है तो क्या क्या दिया है वो लिखना पड़ता है मैं असामीज में लिख रहा हूँ इंग्लिश में बोल दूंगा आपको क्या लिखना है पहले तो लिखना है इसका हाइट कितना दिया है दूरत्व 5 सेंटीमीटर दीर्घ मतलब लंबाई 5 सेंटीमीटर ओके यहाँ पे देखिए इंग्लिश में दिया ऑब्जेक्ट इज द 5 सेंटीमीटर इन लेंथ मतलब हो जाता है लंबा कितना लंबा है लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर क्या क्या लिखना है वो मैं लिख लेता हूँ फिर आपको वीडियो तो दिखा रहा हूँ एटो एटा लिखिबा बस्तुটোৰ उच्चता h इक्वल टू यात h डी डिनोट करिब লাগিব मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो दिया है यहाँ पे बोला है ना एन ऑब्जेक्ट लेंथ ऐसे लिखने से हुआ एन ऑब्जेक्ट लेंथ h इक्वल टू 5 सेंटीमीटर मैं इंग्लिश के लिए बोल दे रहा हूँ इंग्लिश वालों के लिए मैं बोल दे रहा हूँ आप लोग को कैसे लिखना है बच्चे आप लोग एक ही काम कीजिएगा यहाँ पे जो दिया है एन ऑब्जेक्ट लेंथ h इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ये लिख लीजिएगा ये लिख लिया मैंने हाँ यात मन करिबा बस्तुটোৰ दूरत्व यहाँ पे दूरी दिया हुआ है देखिएगा वस्तुটোৰ दूरत्व मतलब यहाँ पे बोला है जब प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस यहाँ पे दिया है ना लेकिन मिरर कौन सा है मिरर कॉन्वेक्स मिरर है कॉन्वेक्स मिरर में प्लेस्ड डिस्टेंस माइनस में होता है मतलब यात मन करिबा उत्तल दर्पणर सम्मुखत 20 सेंटीमीटर दूरत्व ना यात दूरत्व किमान দি আছে 20 सेंटीमीटर কিন্তু দৰ্পণটো চাব লাগিব দৰ্পণটো হল উত্তল দৰ্পণ হলে ডিসটেন্সটো মাইনাস হ'ব এই কাৰণে মই এনেকৈ লিখিছো বস্তুটোৰ দূৰত্ব u इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इक्वल टू इंग्लिश के लिए मैं बोल दे रहा हूँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इक्वल टू -20 सेंटीमीटर माइनस क्यों हल उत्तल दर्पण है कि नहीं उत्तल कॉन्वेक्स मिरर है उत्तल दर्पण रहने से उत्तल दर्पण थकार कारणे u इक्वल टू माइनस हो जाबो किंतु एग्जामिनारे माइनस केতিয়াও নিদিয়ে সিহঁতে ডাইৰেক্ট দি দিব কিন্তু কিন্তু এই কাৰণে মই আগতে কলো কিন্তু এটো বহুত মন কৰিব লগা কথা এটো মন দিবা কিন্তু পৰীক্ষাত এটো মানে এবাৰ নহয় দুবাৰ পঢ়া পৰীক্ষিনি এটো বুজি লোৱা যে দৰ্পণখিনি কি কোনটো প্লাস হ'ব কোনটো মাইনাস হ'ব ধুনিয়াকে বুজিব লাগে এটো মই বনাই দি আছো শিকাই দি আছো এটো এনেকা হ'ব উত্তল দৰ্পণত এটো সকলে সময় মন কৰিবা উত্তল দৰ্পণত u ইকুৱেল টু মাইনাস হ'ব তো -20 সেন্টিমিটাৰ এটো হৈ গল নহয় জানো এটো হৈ গল এতিয়া ভাজ বেসাৰ্ধ কিমান দি আছে জি দি আছে এটো মই লিখিম भाज बेसार्ध मतलब कर्वेचर रेडियस कितना देके रखा है 30 सेंटीमीटर दिया है आप बुक को लेके रखें बुक सामने रहेगा आप यहाँ पे क्वेश्चन रखने से मैं लिख नहीं सकूँगा ইয়াত মন কৰা ভাজ বেসাৰ্ধ কিমান দি আছে ৰেডিয়াস 30 সেন্টিমিটাৰ ইয়াত দি আছে কিন্তু এটো প্লাসত হয় প্লাস আপোনালোকে ইন্ডিকেট কৰিবও পাৰে কৰিব নোৱাৰে নিজৰ ওপৰত এটো নেদিলেও হ'ব তথাপি এটো প্লাসে হ'ব भाज बेसार्ध मतलब कर्वेचर रेडियस जो दिया हुआ है यहाँ पे
वो 30 सेंटीमीटर दिया है, तो 30 सेंटीमीटर वो पॉजिटिव में है। मैंने पहले ही बोला जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें u जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो माइनस में होता है कि नहीं, सॉरी प्लेस डिस्टेंस जो है उसका वो मतलब वही है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है वो माइनस में रहेगा, -20 सेंटीमीटर। किंतु जो रेडियस निकालना पड़ेगा उसको भाज बेसा दो, जो कर्वेचर रेडियस है वो प्लस में रहेगा। अब इस रेडियस से ही, कर्वेचर रेडियस से ही हम फोकस लेंथ निकाल लेंगे। फोकस लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है, फोकस दीर्घर फॉर्मूला 2 हल এই যে ভাজ বেসাডো আছে তাক 2 দিয়ে ডিভাইড করিলে হল कितना होगा, आप निकल के आएगा 15 है कि नहीं, इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये हमारा फोकस निकला, ठीक है। ये हमारा क्या निकला, फोकस। ये কি ওলাল, फोकस लेंथ 2 ওলাল। এইটো চাব, এইটো ফোকাস। এতিয়া ফোকাস ওলাই গ'ল, ইউ ইয়াত দি আছে। এতিয়া ভি ওলাব লাগে। ভিৰ কাৰণে এটা মানে ইয়াত কি ওলাব লাগে মই হেতু দি আছো। ভি ওলাব লাগে, কোশ্চেন মার্ক এনে দি আছো। ভি ওলাব লাগে আৰু এটা কি ওলাব লাগে, আৰু এটা ওলাব লাগে। ইয়াত এইচ দি আছে নহয় জানো, এইচ দি আছে। এতিয়া এইচ ডেছ, এইটো ডেছ বুলি কওঁ, এইচ ডেছ এইটোও ওলাব লাগে, এইটো কোশ্চেন মাৰ্ক। এই দুটা মোক ওলাব লাগে, তেতিয়াহে মোৰ কোশ্চেনটো সমাধান হ'ব। এক্সামিনাৰে দুটা ওলাবলৈ কৈছে। এইটো হ'ল নেচাৰ, সেইটো হ'ল প্ৰাকৃতিক, মানে বস্তুটোৰ প্ৰাকৃতিক আৰু আকাৰ, সেইটোৱে হ'ল। তো এইটো কেনেকৈ ওলাবা, আপোনালোকে এটা ফৰ্মুলা জানে। ফৰ্মুলাটো হ'ল 1/f, এইটো মই দি আছোঁ, 1/f ইকুৱেল টু 1/v প্লাছ 1/u, 1/u। এইটোৱে হ'ল ফৰ্মুলা। এইটো মনত কৰিবা, এইটো ফৰ্মুলা। এতিয়া মই বহাই আছোঁ, जितना भी ভেলু है এতিয়া মই ইয়াত पुट কৰিম ভেলুবিলাক। এতিয়া 1/f, एफर मान किमान उलाल, एफ का वैल्यू कितना निकला, ये निकला 15। तो मैं दे दूंगा 1/15 इक्वल टू, भी तो हमें निकालना है, भी तो यार दिया नहीं, भी ওলাব লাগে। তেনেহ'লে 1/v এনে ৰৈ গ'ল। এইটো প্লাছ প্লাছে মই ইয়াত বহাই দিলোঁ, প্লাছ 1/u, 1/u। u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू हमने देखा यहाँ पे देखिएगा -20 सेंटीमीटर, राइट। तो हम यहाँ पे ब्रेकेट देकर -20 दे दूंगा, -20 दे दूंगा। जो फॉर्मूला है ऊपर किंतु 1 है ये सब, ठीक है। तो अब ये सब 1 है, ठीक है, ये सब 1 है, याद रखिएगा। ये जैसा है वैसा लिखता हूँ, 1/15, ठीक है, इक्वल टू 1/v। अब एक काम कीजिएगा, काम क्या करना है, जो हमको चाहिए क्या, 1/v चाहिए, है कि नहीं। तो इसको एक काम कीजिए, ये देखिए यहाँ पे कितना है, माइनस है, ये क्या है, प्लस है। प्लस माइनस, ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस माइनस, है कि नहीं, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, प्लस माइनस, इस तरह आप लोग जानते हैं प्लस माइनस माइनस, तो माइनस हो जाएगा 1/20, ठीक है, 1/20। ये तो आ गया। अब की बार देखिए, एकदम ध्यान से देखिए, मन करी याद चाबो आरो। ইয়াত কি হৈ গ'ল, আমাক ওলাব লাগে 1/v। এতিয়া মই কি কৰিলোঁ, 1/15 रह गल। ये जो -120 है इसको इधर लेके आऊँगा। সমান সমান, ইয়াত সমান সমান আছে, সমান সমানৰ এইফালত আনিব লাগে। যেতিয়াই মই এইফালে টানো সেই চিম্বলবিলাক চেঞ্জ হৈ যায়, আপোনালোকে জানে, প্লাছ মাইনাছ হয়, মাইনাছ প্লাছ, এইটো কি আছে, माइनस আছে, সেইফালত আহি প্লাছ হৈ যাব। इधर आके उसका वैल्यू प्लस में चेंज हो जाएगा, और इधर क्या रह जाएगा, সমান সমানৰ সেইফালে কি ৰৈ গ'ল, यहाँ पे रह जाएगा 1/v। क्या रह गया बच्चे, 1/v, ठीक है, 1/v। अब यहाँ पे एलसीएम ले लूँगा मैं। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में यहाँ पे 60 ले सकता हूँ। 60, देखो एलसीएम होता क्या है, ऐसा एक नंबर लेना चाहिए जिससे 15 का टेबल में भी वो आए, 20 का टेबल में भी आए। अगर 60 लेता हूँ तो 15 का टेबल में आता है, 15 9 16 आहे, হয় না নহয়। এটা হাটি কিমান টাইমত আহিব, ये 60 जो है 60 कितना टाइम है 15 का टेबल में, 15 4 जा, है कि ना, 15 चौके 60, 15 4 जा। ये 4 से 1 को इंटू कर दो ऊपर वाला को, जितना बार में आएगा। देखो हम दिखा देता हूँ यहाँ पे, साधारण एक्चुअल में यहाँ पे नहीं बनाना चाहिए, मैं बना के दिखा रहा हूँ। चलिए हम तो यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, ठीक है। 16 है, 15 दे दिया, हाँ, 15 चौके 60, कितना आया 60, आंसर कितना निकल के आया 4। तो ठीक ইয়াত এনেকাই হ'ল, ইয়াত কিমান 4, यहाँ पे 4 हुआ ना, यहाँ पे 4 हुआ। ये 4 से ऊपर जितना भी रहेगा, ऊपर जी मानবিলাক আছে তাৰ লগত মই পূৰণ, ऊपर 1 আছে 1 দি পূৰণ কৰিলে 4 रह गल, ठीक है, 4 रह गया, ठीक है। तो ठीक ऐसा ही होगा, 4 4 1 जा 4 प्लस 20 का टेबल में 60 कितना बार में आएगा, 3 बार में आएगा। 20 9 16 किमान 3 23 जा 60, এই 3 দি ওপৰৰ পূৰণ কৰিম, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1/v,
1/v এতিয়া হ'ল 4 আৰু 3 প্লাছ কৰি দিয়া কিমান হৈ গ'ল 7/60 7/60 ইকুৱেল টু 1/v 1/v ইয়াত মন কৰিবা 1/v এতিয়া v ৰ মান কি ওলাব মোক v হে লাগে নহয় জানো v এ লাগে এতিয়া মন কৰিবা ইয়াত মই দি আছো 1/v 7/60 একো কৰা নাই মই হেতু মানে নিজৰ সুবিধাৰ অনুযায়ী মই হেতু হেফালে লৈ আহিলো হেতু হেফালে একো নহয় জাস্ট অলপ হেফালে কৰিলো এখন এতিয়া v ৰ ভ্যালু হে লাগে v লবলে হলে যেতিয়াই মই v লম হেই মানবিলাক তলৰ মানটো ওপৰত যাব ওপৰৰ মানখিনি তলত আহিব হেতু কিয় হল হেতু মই হিকাই দি আছো হেতু এতিয়া ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰা মই ডাইৰেক্ট ভ্যালুটো দি আছো v equal to 60 ওপৰত হ'ব আৰু তলত হ'ব 7 তলত কি হ'ব 7 এতিয়া হেতু কেনেকা হল হেতু যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে হেতু মই ইয়াত সমাধান কৰি এটু দেখুৱাই দি আছো কিমান আছিল 1/v equal to 7/60 হেতু আছিল নহয় জানো হেতু চাব হেতু আছিল এতিয়া মোক ইয়াক সমাধান কৰি আছো ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই এনেকা 7 দি ইয়াক মাল্টিপ্লাই মানে পূৰণ কৰিব লাগে 7 দি যেতিয়া মই v ক পূৰণ কৰো 7v কি হৈ গল 7v 1 ক দি 60 পূৰণ কৰিলে 1 into 60 60 এতিয়া v ইয়াত ৰৈ গল 60 ওপৰত যাব এই 7 খিনি তলত আহিব এই পূৰণ হলে ইফালে আই ডিভাইড হয় নহয় জানো এতিয়া মই এই লাইনটো মই ইয়াত ইন্ডিকেট কৰাই নাই মই ডাইৰেক্ট v ৰ ভ্যালু 60/7 দি দিলো মানে এটু হ'ব আপোনালোকে এটু জানি লওয়া যে 1/v আছে এতিয়া v লবলে হলে এই মানখিনি পাল্টি কৰিব লাগে মানে ওপৰত যাব তলৰটো ওপৰত যাব ওপৰটো তলত আহিব ইয়াত মানে এনেকা আহিল ইয়াত এনেকাই আহিল এটু চাই লব তেটু মই ইয়াত বুজালো আৰু এটু বেসিক বুলি ক'ব পাৰো এটু অলপ মানে এলাইন বাদ দি দিলো ডাইৰেক্ট এডভান্স এটু হৈ গল অলপ মেথডটো তেটুৱে ভাল সময়ৰ বহুতে কম সময় পাও আপোনালোকে জানে যে এক্সামত সময়ৰ কিমান মানে ক্ৰাইসিস এতিয়া এটু v ৰ ভ্যালু উলাই গল এতিয়াও উলোৱা নাই এটু ডিভাইড দিয়া এতিয়া সঠিক ভ্যালু হে লাব এতিয়া কেনেকা উলাব সঠিক ভ্যালুটো ইয়াত মই ডিভাইড দি আছো 67 60 7 8 56 7 9 63 67 8 जा 56 7 8 जा 56 4 এতিয়া পয়েন্ট দি দিয়া 40 7 5 जा 35 ইয়াত ৰৈ গল 5 আকৌ এটা 0 দি দিয়া 7 7 जा 49 এটু আকৌ 1 আইব মানে হল পয়েন্টৰ যেতিয়া পয়েন্ট আই গল পয়েন্টৰ পিছত দুটা ঘৰ চলিলে আৰু বেছি না লাগে দুটা ঘৰ যোৱা এটা দুটা হৈ গল আৰু 8.57 সেন্টিমিটাৰ হেতু v ৰ ভ্যালুটো উলাল ইয়াত কি কলে v আৰু h ডেছ হে লাগে তো v টো উলাই গল v টো কিমান উলাল v টো উলাল 8.57 সেন্টিমিটাৰ হেতু উলাল মন কৰিবা হেতু উলাই গল এতিয়া h ডেছৰ ভ্যালুটো লাগে এতিয়া কেনেকা यहाँ पे याद रखिएगा v का वैल्यू तो निकल गया मेरा अब हमारे निकालना है विवर्धन मतलब मैग्निफिकेशन ये इंग्लिश वाला लिख लेगा मैग्निफिकेशन मैं असामीस वालों के लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ विवर्धन इसको डिनोट किया जाता है m से मैग्निफिकेशन इक्वल टू m इंग्लिश वाला डायरेक्ट m भी लिख सकता है कोई बात नहीं डायरेक्ट m लिखिए ये हटाइए m इक्वल टू व्हाट m इक्वल टू h डैश बाई h इक्वल टू फॉर्मूला है माइनस v बाई u ये फॉर्मूला है माइनस v बाई u ठीक है ये फॉर्मूला है चलिए फॉर्मूला के ऊपर हम उसको पुट करते हैं h डैश अब याद रखिएगा h डैश ये तो फाइंड आउट करना है मैं आस्ते से लेके आता हूँ कैमरा थोड़ा ये h डैश ये तो फाइंड करना है इसका तो वैल्यू है नहीं ठीक है तो इसका वैल्यू नहीं है तो इसको ऐसा ही दे दूंगा मैं h डैश ही दे दूंगा तो h डैश हो गया एच का वैल्यू मेरा था 5 सेंटीमीटर मैं पहले ही लिखा था 5 ये तो हो गया ये ऐसा दीजिए ऐसा दीजिए तब से हो जाएगा इक्वल तो इक्वल ही रहेगा चलिए इक्वल ही दे देता हूँ हटाइए क्योंकि इक्वल है एम इसके सब इक्वल है बराबर यहाँ पे देखिए माइनस तो माइनस हो गया v का वैल्यू कितना है देखिए v का वैल्यू ये निकल के आया ना तो ये वैल्यू देने से मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा ये भी तो v का वैल्यू है याद रखिएगा ये भी v का वैल्यू है ये भी v का वैल्यू है दोनों एक ही है तो मैं ये वैल्यू देने से मेरा यहाँ पे सॉल्व करने में थोड़ी समस्या आ जाएगी অলপ মানে
এইটো প্ৰব্লেম হ'ব সেইকাৰণে মই সেই ভ্যালুখিনি v इक्वल टू 16/7 এটুৱে দি আছো यहाँ पे माइनस v मांगा है ना v कितना है 60/7 ये है ना यहाँ पे है ना 60/7 ये दे दिया। अच्छा u का वैल्यू तो मुझे मालूम था u का वैल्यू क्या था -20 आप लोग को मालूम है माइनस यहाँ पे माइनस है ना ये माइनस हम यहाँ पे ऊपर दे सकता हूँ माइनस ऊपर दिया जा सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है माइनस ऊपर होगा ही होगा माइनस ऊपर ये माइनस तो ऊपर दे दिया अब भी है देखिए ये ऊपर ही है ये देखिए ऊपर ही है ऊपर माने ऊपर फालत আছে এটু মাইনাস তো মাইনাস দি দিছো এটু মাইনাস ভিৰ ভ্যালুটো হল 60/7 ইয়াতে 60/7 দি দিছো ইওর ভ্যালুটো কিমান আছে ইওর ভ্যালুটো -20 আছে ওপৰত মই কিন্তু লিখিছিলো -20 ইউ ইকুয়াল টু এতিয়া এই মাইনাস দি এই মাইনাস কটাকটি হ'ব কাটিব না লাগে এটু মাইনত নিজৰ মাইন্ডত ৰাখা এটু দি এটু কটাকটি হল এটু এতিয়া কি ওলাই গল ইয়াত হল এস ডেশ यहाँ पे देखिए यहाँ पे एच डैश ये तो है ना माइनस से माइनस से कट जाएगा ये आपको मालूम है अब हमारा एच डैश लग गया नीचे क्या लग गया 5 इक्वल टू यहाँ पे 60/7 डिवाइड 20 डिवाइड क्या हो गया 20 डिवाइड क्या हो गया 20 याद रखिएगा ये जैसा है वैसा लिख रहा हूँ। अब देखिएगा मैं इधर बना रहा हूँ मेरा जगह नहीं है तो मैं क्या लिखूँगा एच डैश बाई 5 ये तो था मेरा एच डैश बाई 5 ये तो था ही आप लोग जानते हैं इक्वल टू यहाँ पे जो 60/7 है इसको ऐसे लिख दिया। अब बोलिएगा क्यों लिखे सर 60/7 इक्वल के बराबर लिख दिया ये जो 20 है ना 20 का नीचे भी 1 है याद रखिएगा इसके नीचे 1 है क्या है 1 है जब 1 को ये डिवाइड है ना ये डिवाइड है इस डिवाइड को मैं इनटू में कन्वर्ट करूँगा देखिएगा ये थोड़ा बदमाश का फॉर्मूला यहाँ पे आता है तो वो छोड़िए बेसिक इसीलिए क्लास 9, 2, 3 सबका मैथ्स काम आता है आप लोगों को ये सब। अच्छा ठीक है ये डिवाइड है इसको मैं इनटू में चेंज करूंगा जब भी इनटू में चेंज करूंगा डिवाइड को नीचे वाला ऊपर चला जाएगा मतलब 1 ऊपर जाएगा 20 नीचे आ जाएगा ये सिस्टम होगा याद रखिएगा 20 ऊपर जाएगा बस चेंज हो जाएगा इसका नीचे 1 है हर एक संख्या जी को एटा संख्यार ताल तलत अकले 1 रय तो ये 1 रहता ही है इसको हमें चेंज कर दिया एटू 1 टू ऊपर गल 20 टू तलत आहिल एटू और ये तो ऊपर का ही मान था बस मैंने डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट किया मान क्या हो गया ऊपर नीचे हो गया इसको ऐसा ही रखिए 5 रखिए एक काम कीजिए देखिए कटाकटी कीजिए ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा अब 6 × 1 क्या हो जाएगा 6 × 1 0 0 ऊपर नीचे कुछ कटता है तो काट ये भी कटेगा देखिए ये भी कटेगा कैसे कटेगा 2 का टेबल में 6 आता है कि नहीं आता है 2 3 जा अगर कोई स्टूडेंट डायरेक्ट 20 से 60 को काटता है फिर भी काट सकता है नो प्रॉब्लम 20 का टेबल में 60 कितना है 3 बार में ये भी आ गया अब तो कट गया ये 0 0 कट गया 2 का टेबल में 6 3 बार कट गया अब ये 3 और ये 1 है याद रखिएगा ये 3 और 1 है 3 × 1 ये मिडिल में इंटू है 3 × 1 यहाँ पे होगा 3 7 यहाँ पे कुछ नहीं है किंतु डायरेक्ट 7 है तो 7 बैठा दे कुछ है ही नहीं यहाँ पे तो बचा नहीं तो 7 बैठा दिया ठीक है 7 बैठा दिया। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई वैसा ही क्रॉस मल्टीप्लाई इधर ऐसा तिरछा बोला जाता है ना क्रॉस मल्टीप्लाई ये 5 से 3 को इंटू कीजिए इसको अच्छा ये 7 से एच डैश को इंटू किया 7h डैश ये आ गया 7 से इसको इंटू किया इसको 7 × h डैश यहाँ पे देखिए 7 × h डैश आंसर निकल के आएगा 7h डैश वही है 7 × h डैश 7h डैश यहाँ पे बराबर था ये आपको दिखाना नहीं है एग्जाम में ऐसे बस अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए क्या हो रहा है बस नेक्स्ट स्टेप जाना है। इसके बाद 5 से 3 को 5 3 जा 5 3 गुण 15 यहाँ पे हो गया 15 ठीक है 15 हो गया एच डैश होगा ये 15 ऊपर जाएगा और ये 7 नीचे आ जाएगा इसको भी डिवाइड दे दीजिए डिवाइड देने से आंसर कितना निकल के आएगा 15 को 7 से अगर देता हूँ 7 दूना 14 एक बचा 0.0 7 एकम 7 3 0 7 चौक 28 28 अब जाना नहीं है पॉइंट के बाद 2 घट 2.14 बस यही है इसको काट के मेरा आंसर निकला एच डैश इक्वल टू नहीं दिख रहा है क्या हाँ एच डैश इक्वल टू कितना निकला टू एच डैश इक्वल टू 2.14 हाँ ये क्या होगा सेंटीमीटर ऐसे होगा सेंटीमीटर। उच्चता यहाँ पे लिख देना हाइट इक्वल टू प्रतिबिंबर उच्चता प्रतिबिंबर उच्चता किमान उलाल मतलब वो ऑब्जेक्ट की हाइट कितना आ गया यहाँ पे आसामीस वाला लिखेगा प्रतिबिंबर उच्चता इंग्लिश वाला लिखेगा ऑब्जेक्ट हाइट इक्वल टू एच डैश इक्वल टू वही है तो आ ही गया कितना आया
2.14 सेंटीमीटर ये लिखिएगा इमान दूर हो गल एटिया मैं सकले समाधान करि ललु एग्जामिनारे जी दिले हेतु सकलेखिनि मैं बनाई ललु एटिया लास्टत एटा स्टेटमेंट लिखिब लागे स्टेटमेंटखिनि हल स्टेटमेंटखिनि एटु लिखि लिया अस्थीय प्रतिबिम्बर उच्चता 2.14 सेंटीमीटर दर्पणर पिछफाले 8.57 सेंटीमीटर आतৰৰ अवस्थित गठन हब एटु एटा इम्पर्टेन्ट अस्थीय प्रतिबिम्ब उच्चता 2.14 सेंटीमीटर दर्पणर पिछफाলৰ 8.5 सेंटीमीटर आतৰত अवस्थित गठन हब दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मैं 5 मार्क का सोल्व किया ये कई बार एग्जाम में आया है आप लोग यहाँ पे देख सकते 16 में 18 में भी आया 21 में भी आया और कई बार प्री फाइनल हफेली में आया है इसलिए मैं इसको सोल्व करा के समझा दिया कौन क्या हो रहा है ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाला क्या लिखेगा दिखा रहा हूँ इंग्लिश मीडियम वाला क्या लिखेगा उसको इंग्लिश मीडियम वाला लिखेगा ये वाला लिखेगा इंग्लिश मीडियम ये लिखेगा हिंदी मीडियम वाला के लिए ऐसा लिखा जाएगा देखिए सभी का दिखा दे रहा हूँ जो मीडियम है उस सब का दिखा रहा हूँ अतः प्रतिबिंब दर्पण से 8.57 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे सीधा तथा आभासी है और इसकी ऊंचाई 2.14 सेंटीमीटर है। एटिया इंग्लिश मीडियम आप लोग क्या लिखिएगा आप लोग लिखिएगा द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इमेज का पॉजिटिव वैल्यू आया हमने देखा इमेज का पॉजिटिव वैल्यू है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इमेज हाइट इंडिकेटेड दैट द इमेज फॉर्म इज इरेक्ट देयरफॉर द इमेज फॉर्म्ड ठीक है फॉर्म्ड इज वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज बस इंग्लिश वाले के लिए ये लिखना था ठीक है ये दिखाई दे रहा है शायद ठीक है चलिए ऐसा दिखाई देगा नहीं हो रहा है चलिए मैं तो बोल ही दिया ना आप लोग लिख ले कैमरा में दिखाई दे ना दे लिख ले आई होप कि आप लोगों को समझ में आया है। इसके बाद क्या दिया था एग्जामिनर आपको दिखा रहा हूँ पेपर कहाँ गया है यार पेपर मेरे पास पेपर है 14 का 15 का 20 का 19 का सब पेपर है सभी का मैं कराऊंगा समय नहीं रहता है आप लोग भी हेल्प नहीं करते हैं चैनल को ग्रो करने में अपना लोग के अलप হয় দিয়া मोर चैनलर हेतु शेयर करा निजर फ्रेंडर उचरत है कि नहीं सब्सक्राइब करके रखिए शेयर कीजिए थोड़ी सी तो हेल्प कीजिए है कि नहीं। ये कौन सा पेपर है ये अच्छा ये तो ये वाला है स्पेशल वाला चाहिए था मुझे स्पेशल का क्वेश्चन इस बार देगा इसलिए मैं स्पेशल का देख रहा हूँ। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है बच्चे ध्यान दीजिएगा ये जो क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर ये एक्सरसाइज 10.2 ये वाला भी इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम्पल का दिया है एग्जाम्पल दिखा देता हूँ मैं ये बनाऊंगा मैं लगभग यही एक ही वीडियो बनाने में आधा घंटा लग गया क्योंकि आप लोग को तो समझ में आएगा नहीं बेसिक से समझाना पड़ता है बेसिक से आपको दिखा रहा हूँ कौन सा करना है ये वाला एटू किंतु बहुत इम्पोर्टेंट एटू 10.2 एटू किंतु एग्जामत आही से 21 का स्पेशल एग्जाम में आया था स्पेशल एग्जाम में आया था तो इम्पोर्टेंट है इसको बनाना पड़ेगा। इसमें कौन सा वैल्यू क्या होगा ये मैं बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे अवतल लेंस है याद रखिएगा एटू किंतु उत्तल दर्पण आसिल यार किंतु अवतल दर्पण সেই কাৰণে ইয়াত ভ্যালু বিলাক অলপ আৰু বেলেগ হ'ব এই उत्तल दर्पणखिनि মনত কৰিবা ইউৰ ভ্যালুখিনি ইউ का जो ভ্যালু था ठीक है ইউৰ ভ্যালু মানে হল বস্তুৰ দূৰত্ব সকলে সময়ে उत्तल दर्पणत বস্তুৰ দূৰত্ব মাইনাসত হ'ব कॉन्वेक्स मिरर के अंदर u का जो वैल्यू होता है ऑलवेज माइनस में इंडिकेट करता है। सो ये सब याद रखना है हम ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा और देखता हूँ वीडियो में कितना लाइक आता है जितना स्टूडेंट देखा अगर लाइक नहीं करेगा और शेयर नहीं करेगा तब तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद आप लोग भी मेरा हेल्प नहीं करते हैं आप भी हेल्प कीजिए चैनल को ग्रो करने में थोड़ी सी दोस्तों के पास भेजिए सब्सक्राइब कीजिए है कि नहीं एक फ्रेंड अगर 10-15 के पास भेजता है तो कितना सब्सक्राइबर भी होगा है कि नहीं क्योंकि मैं चाहता हूँ सभी का हेल्प करूँ ठीक है तो आप भी हमारा हेल्प कीजिए। सो बाय बाय टेक केयर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा लाइक भी देखना कमेंट जरूर कीजिएगा आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है ये समझ में आया कि नहीं बोलिएगा क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब वो बनाऊंगा मैं अभी आज ही मिलेगा आपको वो भी वीडियो आज ही मिलेगा शाम को तो शाम को जब मिलेगा तो वो भी प्रॉब्लम अगर कोई हुआ है तो उसमें उसको मैं फिर से समझा दूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं बना हुआ है बस समझा देना है।